Good morning, 7th class. This is your English class. I hope you are safe at your places. So, students, today, as we are studying chapter 8, India's vanishing wildlife, now let's study further. Down south, it isn't it any better. The Nilgiri that faces extinction, it is killed for its meat. The chatter of the black-faced Nilgiri langur is slowly falling silent. The oil from its fat is sold as a balm, and its flesh released by poachers. The Indian python has been mercilessly killed for its skin, and the Indian elephant has also been pushed into the highly endangered list recently. और अगर हम साउथ की बात करें तो जो नीलगिरी है वो भी एक्सटेंशन को जो है फेस कर रहा है. एक्सटेंशन यानी कि ख़त्म ही होने वाला है. क्योंकि जो नीलगिरी है वो मीट के लिए मारा जाता है, और जो नीलगिरी लंगूर है वो उसका जो फैट का ऑयल है वो बाम में यूज़ होता है. जो इंडियन पाइथन है वो स्किन के लिए मारा जाता है और किल किया जाता है, और जो इंडियन एलिफेंट है वो भी अब एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका है. Only now are ecologists working out the true extent of the damage. The Indian wolf, for instance, has lost 87% of its original habitat. The Indian gazelle, 88.4%. The sloth bear, 83%. And the Huluk gibbon, India's only ape, 87%. In fact, habitat loss is one of the major causes of the rapid depletion of wildlife. अगर हम इकोलॉजिस्ट की बात करें तो यही हैं जो हम असल में काम कर रहे हैं. इस जो ये स्पीशीज़ जो हैं ये एक्सटेंट हो रही हैं, इन पर जो है सिर्फ एक इकोलॉजिस्ट ही हैं जो ठीक से काम कर रहे हैं. जो इंडियन वुल्फ हैं वो 87% जो है हैबिटेट खो चुके हैं. इंडियन गेजल है 88.4%. और जो अगर हम स्लॉथ की बात करें, स्लॉथ बियर की बात करें तो 83%. और हुलक गिब्बन यानी कि जो इंडिया में सिर्फ एक एप ही की कैटेगरी है जो बच रही है वो है 87%. तो हैबिटेट जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं. जैसे कि वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती जा रही है वैसे ही हैबिटेट भी जो हैं वो साथ में ख़त्म होते जा रहे हैं. Probably the most successful conservation effort in the country has been the Project Tiger. Tiger had been so rapidly killed off that the total number stood at just over 1,500. The government banned the killing of tigers and set up 9 reserves, enabling their numbers to increase dramatically. By last year, there was 15 tigers reserves harboring over 1,800 tigers. The government's move to establish more sanctuaries and national parks may protect animals in the short run, but it will come into increasing conflict with India's rapidly growing population. The mistake we are making is that while reserving areas for wildlife, we do not provide alternative sources of fuel and cattle fodder to the villagers. अगर हम सबसे जो आजकल सक्सेसफुल अगर हम कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो वो चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर. प्रोजेक्ट टाइगर जो हैं वो काफ़ी मारे गए हैं, लेकिन जो टोटल नंबर है वो अब 1500 रह गया है. गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है किलिंग ऑफ टाइगर्स, और अब जो है रिजर्व्स बनाए गए हैं. 15 टाइगर रिजर्व्स और ऐड किए गए हैं जिसमें 1800 जो हैं टाइगर्स हमने हार्बर यानी कि वहाँ पर सेफली उनको रखा हुआ है. तो गवर्नमेंट का जो ये मूव है ये सेंचुरीज़ को, नेशनल पार्क्स को बनाने का, प्रोटेक्ट करने का टाइगर्स, ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, जा रहा है. लेकिन जो मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि ये जो विलेजर्स को हम फ्यूल नहीं दे पा रहे हैं और एनिमल फॉडर यानी कि एनिमल का जो खाना है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, यही एक इकलौती मिस्टेक है जो हम कर रहे हैं. लेकिन साथ में इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो हो सकता है कि ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सके. The conservation effort has also failed to develop a scientific database on wildlife to help manage the existing sanctuaries. By concentrating on the larger mammals, the lesser known species have been totally neglected. Conservations are realizing how delicate the ecological balance is in the wild. Even the destruction of a minor snake could lead to a chain reaction of extinction. और इसमें यह कहा गया है कि हम जो है एफर्ट जो
बड़े एनिमल्स हैं, जो बड़े मैमल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को कंजर्व कर रहे हैं। जो लेसर नोन स्पीशीज़ हैं, जो छोटी रिप्टाइल्स हैं या जो छोटे मैमल्स हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जो छोटे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो बड़े हैं यानी कि टाइगर्स हैं, हम उनको रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन जो उनका इकोलॉजिकल कोई डेटाबेस नहीं है साइंटिफिक जो हम मेंटेन कर रहे हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो होना ज़रूरी है नेचर में, जो कि मेंटेन नहीं हो पा रहा है। Fortunately, there has been a growing environmental consciousness among the people and the government. Everyone is beginning to understand that wiping out wildlife is not an isolated tragedy. Along with the animals, forests would get denuded, rivers would be flooded, and topsoil would be washed away. In short, it would be total ecological disaster. Ecologists shudder to think that would happen by the turn of the century when the population cross 1 billion. और अब जो है लोग और गवर्नमेंट जो है वो समझ रहे हैं एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस को कि जो ये वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर देना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए तो फ्लड आनी शुरू हो जाएगी, जो टॉप सॉइल है वो वॉश्ड ऑफ हो जाएगी, जिसके वजह से जो फर्टाइल लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाएगा, और जो एक इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है वो हो जाएगा, जो कि बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है। अगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।